جی، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فدعو، بس آپ پکاریے، یہ فدعو صیغہ امر کا ہے، یہ دعا یدعو سے مطلب پکارنا بلانا، فدعو لنا، بس آپ پکاریے ہمارے لیے، یہ دعا بھی اسی سے نکلتا ہے، فدعو، بس اب ہم یوں بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، فدعو لنا، بس آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، اخرج یخرج اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا، ٹھیک، یخرج لنا، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، من کا مطلب سے، ما کا مطلب ان چیزوں میں سے، تو یخرج لنا مما، نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، جن کو زمین، انبتا ینبتو، اس کا معنی ہوتا ہے زمین کا اگانا، الارض زمین کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر بار بار جو ہے اس پہ صبر نہیں کر سکتے کہ ہر روز کھانے کو ایک ہی چیز ہو، جو اوپر من و سلوا تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مسلسل نہیں کھا سکتے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں نا وہ ہمیں وہ عطا کرے، ٹھیک، کون کون سی، من بقلیہا، من بقلیہا، بقل کہتے ہیں سبزیوں کو، ترکاریوں کو، وقصائہا، اور قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، یہ ترے جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ترے ہوتی ہیں کھیرے کے ساتھ، کھیرے کی طرح کی، اور اس میں جو ان کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو عربی میں قصہ کہتے ہیں، وقصائہا، اور زمین سے جو نکلنے والی ککڑیاں، وفومہا، فوم کہتے ہیں لہسن کو، وعدسہا، عدس کہتے ہیں دال کو، وبصلیہا، اور بصل کہتے ہیں پیاز کو، تو پوری آیت کا مطلب یہ ہوگا، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلها، آگے اس کی آواز تو وضاحت، خراب ہو رہی ہے تو نہیں ہوگی. میری آواز ایک منٹ، استاد جی آواز نہیں آ رہی. شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، فادع لنا ربک، بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. میں ایک منٹ ذرا پھر موبائل سے کر کے پھر اس میں کرتا ہوں، شاید لیپ ٹاپ میں مسئلہ آ رہا ہے.
उस्ताद जी अब आवाज ठीक आ रही है। अब आवाज़ ठीक आ रही है? चलें फिर इधर से ये जी जी फदउ लना उस्ताद। रब्बका, बस आप दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से, युखरिज लना, कि वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम बितुल अर्ज़, उन चीज़ों में से जिन्हें ज़मीन उगाती है, मिम बकलिहा, ज़मीन की सब्जियाँ, वक़िस्साइहा, ज़मीन की तरकारियाँ, वफ़ूमिहा, और लहसुन, वअदसिहा, और दालें, वबसलिहा, और प्याज। यानी उन्होंने कहा कि अब हम मन्नो सलवा मुसलसल नहीं खा सकते, इसलिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए जो ज़मीन की सब्जियां हैं उनको निकालें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा आगे? कॉल, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो? काला अतस्तब्दिलूना, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी हुआ अदना, उस चीज को, हुआ अदना जो कमतर है, बिल्लज़ी, उस चीज के साथ, हुआ खैरुन, जो बेहतर है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो मनोसलवा अल्लाह ताला तुम पर नाजिल कर रहा है, तुम्हें बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी मुशक्क़त के वो खाने को मिल रहा है, क्या तुम उसको छोड़कर ज़मीन के अंदर फिर खुद मेहनत करके हल चलाकर उसके अंदर खेती बाड़ी करके मुशक्क़त उठाकर फिर खाना खाना चाहते हो? तो क्या वो जो तुम्हें बगैर किसी मेहनत के मिल रहा है उसको छोड़कर, जो कि बेहतर है, उस चीज़ को तुम मांग रहे हो कि जिसके अंदर मुशक्क़त है और उससे कमतर भी है? लेकिन चूंकि जैसे उनका मुतालबा था, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इहबितू मिस्रन, इहबितू मिस्रन, उतरो किसी शहर में। इहबितू ये पहले भी लफ्ज गुजर चुका है, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। आवाज का मसला फिर आ रहा है, 1 मिनट में मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। जी, तो काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लज़ी हुआ अदना, उस चीज को जो कमतर है, बिल्लज़ी, उस चीज के साथ, हुआ खैरुन, जो बेहतर है। तो मैं इसकी वजाहत में बतला रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मनो सलवा तो तुम्हें बगैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के हासिल हो रहा है, तुम्हें उसके लिए मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, तो ये जो बेहतर है तुम्हारे लिए। लेकिन क्या तुम इसको छोड़कर ऐसी चीज़ को तलब कर रहे हो कि जिसके लिए तुम्हें फिर जो कमतर है और उसके लिए तुम्हें मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ज़मीन के अंदर हल जोतना पड़ेगा। तो लेकिन चूंकि उनका मुतालबा था, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनसे, इहबितू मिस्रन, इहबितू मिस्रन, कि उतरो किसी शहर में, उतरो किसी शहर में। ठीक, फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, कि पस बेशक तुम्हारे लिए है, फ़इन्ना लकुम, पस बेशक तुम्हारे लिए है, माँ, वो चीज़ें, सअलतुम, जो तुमने मांगी। ठीक, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वलमस्कनतु, और डाल दी गई उन पर अज़िल्लतु, जिल्लत, वलमस्कनतु, और बेचारगी, और डाल दी गई उन पर जिल्लत, वलमस्कनतु, और बेचारगी, वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वो लौटे बिग़ज़बिम मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब के साथ। वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, बाऊ, बाआ यबाऊ, बाआ यबू, इसका मानी होता है लौटना, पलटना। गज़ब, नाराज़गी, गुस्सा, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, इसमें पस मंज़र इसका ये है, कल जैसा कि पढ़ा था कि वादी तीह के अंदर जो है ये भटकते रहे थे, सहराए सीना के अंदर।
तो वहाँ पर ही इनको मन सलवा भी खाने पीने के लिए जैसे पढ़ा कि वैदिस्तस्क़ा मूसा, इन्होंने पानी तलब किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी के चश्मे जारी कर दिए, खाने के लिए मन सलवा का इनके इंतज़ाम किया। तो इनको जब शहर में दाखिल होने के लिए कहा गया तो कहा कि हम वहाँ पर दाखिल नहीं होंगे, इसलिए फिर वो उसमें भटकते रहे थे। तो खाने पीने के मामले में जब उन्होंने ये कहा कि हमें जो है ज़मीन की सब्जियाँ तरकारियाँ वगैरह चाहिए थी, तो ज़ाहिर बात है वो तो सहरा में नहीं हो सकती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर उनसे कहा कि फिर किसी शहर में जाओ और वहाँ पर फिर हल जोतो और वहाँ पर फिर खुद मेहनत करो, खेती बाड़ी करो और वहाँ पर वो चीज़ें फिर खुद उगा के खाओ, तो जो तुमने मांगा तुम्हारे लिए वो मुयस्सर हो जाएगा। और ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, उनके ऊपर ज़िल्लत और बेचारगी अल्लाह ताला ने डाल दी। मतलब है कि उनको ज़िल्लत उनका मुकद्दर बना दिया और बेचारगी उनके ऊपर डाल दी और वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए क्योंकि बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, बेशक वो इनकार करते थे अल्लाह की आयत का। यहाँ पर अल्लाह की आयत से मुराद अल्लाह की निशानियाँ हैं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब दरिया पार किया, फ़िरौन उनका कुछ ना कर सका और फ़िरौन और उसका सारा लश्कर जो है वो डूब कर जो है उसमें गर्क हो गया। और ऐसी उन्होंने बहुत सी निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम के जो मुअजिज़ात थे वो देखे थे। इस सब के बावजूद भी उन लोगों ने अल्लाह ताला की बातों को मानने के लिए बजाय उनकी जो नाफरमानी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयात को, अल्लाह ताला की निशानियों को झुटलाया। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और अम्बिया को कत्ल किया बिग़ैरिल हक़, नाहक। ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की। ज़ालिका, ये इसलिए बिमा, बसबब इसके, असौ, जो उन्होंने नाफरमानी की। वकानू यातदून, और वो हद से तजावुज़ करने वाले थे। वकानू यातदून, और वो हद से तजावुज़ करने वाले थे। इस आयत में ना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून से लेके वकानू यातदून तक, यहाँ पर उन ख़ास बनी इसराइल की बात नहीं हो रही जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे यहाँ पे, बल्कि मजमूई तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर मौजूदा दौर तक, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर तक यहूदियों के ऊपर मजमूई तौर पर एक उनके बारे में अल्लाह ताला ने उनका बताया कि तुम्हारी ये हरकतें रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी तुमने ऐसे ऐसे मामलात किए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत और मस्कनत तुम्हारे ऊपर जो डाल दी कि तुम्हारा वो मुकद्दर बना। और उसके बाद ये इसलिए तुम्हारे साथ हुआ क्योंकि तुमने हर नबी की, तुम्हारे पास जो भी आया तुमने उसकी नाफरमानी की और तुमने जो है अल्लाह की आयत का इनकार किया और तुम हद से तजावुज़ करने वाले थे, हत्ता कि तुमने अम्बिया को कत्ल भी किए। तो ये सब तुम्हारे साथ इस वजह से हुआ। अगली आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक ईमान वाले, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हैं। पिछली आयत का तर्जुमा वैसे लफ्ज़ी अगर करें तो यूँ होगा, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बने, वन्नसारा, और बेशक नसारा, वस्साबिईना, और साबी। साबी किसको कहते हैं? ईमान वाले तो आपको पता है, इस्लाम वाले। वल्लज़ीना हादू, जो यहूदी हैं, यहूदियों के भी आपको पता है। वन्नसारा, नसारा ईसाइयों को कहते हैं। वस्साबिईना, साबी असल में कहते हैं अरबी के अंदर, अरब में एक जो है वो ग्रोह था जो सितारा परस्त था, यानी कि जो सितारों की परस्तिश किया करता था। और क्या कहते हैं, उनका किताब पर भी ईमान था वो, लेकिन उन्होंने अपनी वो तालीमात से, जैसे यहूद और नसारा ने अपनी तालीमात से इन्हिराफ कर लिया था, इसी तरह उनके पास भी नबी आया था, उनके पास साहिब किताब थे वो, लेकिन उन्होंने शरीयत से और जो उनके पास किताब उनको दी गई थी उससे रूगर्दानी कर ली और उससे वो फिर गए थे और उन्होंने बातिल नज़रियात को अपना लिया था। तो बाद में तो वो गुमराह हो गए, लेकिन जो जिस वक़्त उनको किताब मिली थी और उस वक़्त वो राह हक पर थे, उन लोगों का तज़किरा है कि बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो यहूदी हैं, जो नसारा हैं और जो साबी हैं, इनमें से मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाया,
वअमिला सालिहन, और अच्छे अमल किए, आमिला काम किए, सालिहन अच्छे, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, फलहुम अजरुहुम, तो उनके लिए उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कोई खौफ ना होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर के बारे में तो ये बतला दिया कि अल्लाह ताला उनको ज़िल्लत और बेचारगी उनके ऊपर डाल दी, और वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया था। तो क्या सब यहूदियों के बारे में ये बात है? तो अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो नफ़ी कर दी कि नहीं, ईमान वालों में से भी, यहूद और नसारा में से भी और साबिईन में से भी जो राह हक पर थे, जिन्होंने जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अच्छे काम किए, तो उनके लिए तो उनका अजर है। ये जो बातें ऊपर वाली जिक्र की गई हैं, ये उनके लिए है कि जो नाफरमान थे, लेकिन उनमें से जो ईमान वाले थे, आखिरत पर, अल्लाह पर और ईमान रखते थे और नेक काम करते थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके बारे में ये बात नहीं है, बल्कि उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और वो आखिरत में उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अच्छा, यहाँ से एक इन आयात से जो है ना इस्तिदलाल करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि जी ये देखिए, यहाँ पर ये कहा गया कि बेशक ईमान वाले यहूदी, नसारा और साबी जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर और अच्छे काम करें, तो उसके लिए उसका अजर है उसके रब के पास। कुछ लोग आजकल के ज़माने में ये कहते हैं कि आजकल के भी यहूदी और ईसाई, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो वो भी जन्नत में जाएंगे। ठीक, कोई सा ऐसे कहता है कि देखिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वाले यहूदी और नसारा जो अल्लाह, यानी कि गोया कि कहते हैं तीन चीज़ें होनी चाहिए बस, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और अच्छे काम। ये तीन चीज़ें अगर आज भी किसी यहूदी या किसी ईसाई में पाई गई, तो वो भी आखिरत में उसको उसका अजर मिलेगा और ना उसको वो जन्नत में जाएगा। जबकि इस आयत से ये इस्तिदलाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि पस मंज़र में मैंने आपको बता दिया कि मजमूई तौर पर यहूद की जो है वो हालत ज़ार के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि इनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत को डाल दिया गया। लेकिन फिर साथ में इस्तिस्ना कर दिया कि नहीं, जो इनमें से ईमान वाले थे, यहूदों में से जो सही ईमान रखते थे, उनके बारे में ये मामला नहीं है। और वैसे भी कुरान पाक की दूसरी आयत के अंदर इन दीना इंदल्लाहि इस्लाम, कि मूसा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले पहले तो यहूद और नसारा जो सही अकायद रखते थे, उनके लिए तो बख्शिश हो सकती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रसूल मबूस हो गए, तो अब उनकी इताअत के बगैर जन्नत में नहीं जाया जा सकता। लिहाजा आजकल का जो यहूदी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर आज तक के जो यहूदी हैं या जो नसारा हैं, वो तब तक उनकी कामिल मग़फ़िरत नहीं हो सकती, उनकी बख्शिश आखिरत में नहीं हो सकती, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर ईमान ना लेकर आए। तो इस आयत में जो तज़किरा है वो उन लोगों का है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले पहले थे। अच्छा जी, अगली आयत, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने लिया, अख़ज़ना लिया, मीसाक़कुम तुमसे वादा, मीसाक कहते हैं पक्का पुख्ता वादे को, तो मीसाक़कुम तुमसे वादा लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अत-तूरा तूर पहाड़ को, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे वादा लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और बुलंद किया तुम पर तूर पहाड़ को। क्या क्या वादा लिया? ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, पकड़ो, ख़ुज़ू पकड़ो, मा आतैनाकुम उस चीज़ को, आतैनाकुम जो हम तुम्हें दे रहे हैं, बिक़ुव्वतिन मजबूती से, मा आतैनाकुम जो हम तुम्हें दे रहे हैं, मुराद इससे तौरात के अहकामात हैं। ठीक, खुदू मा आतैनाकुम पकड़ो तुम उस चीज़ को, आतैनाकुम जो हम तुम्हें दे रहे हैं, बिक़ुव्वतिन मजबूती के साथ, वज़्कुरू मा और याद रखो, वज़्कुरू और याद रखो, मा उन चीज़ों को, फीही जो इसमें हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी बन सको। ठीक,
यहाँ पर एक वाक़या पीछे जैसे गुजरा ना, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तौरात लेकर आए और अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अहकामात दिए हैं, ये किताब जो है मुझे दी है इसके ऊपर अमल करने के लिए। तो उसमें चूँकि उनके लिए मुश्किल अहकाम थे, तो इन्होंने कहा हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि जो है ना हम खुद अल्लाह को ना देख लें और खुद अल्लाह हमें ना कह दे कि हाँ, अभी इसके ऊपर ईमान लो और इसके ऊपर इसके मुताबिक अमल करो। कहते जब तक हमारे साथ ये मामला नहीं होगा हम इसके ऊपर ईमान नहीं लाएँगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनको 70 आदमियों को लेकर गए और क्या कहते हैं, फिर वो जब मामला पेश आया तो उन्होंने जब देख लिया तो वापस आने के बाद अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है ईमान ले आओ, लेकिन जो चीज़ तुम्हें अगर मुश्किल लगे तो उसमें छोड़ देना, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो जब ये वाला मामला पेश आया तो उन लोगों ने जो है फिर मनमानी शुरू कर दी। जिस हुक्म को ना करने के उसके ऊपर अमल करने को ना दिल करता तो कहते जी ये मुश्किल है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको दोबारा लेकर गए, ठीक? और फिर वहाँ पर ये सूरत हाल पेश आई, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, ठीक? कि जब हमने तुमसे वादा लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और तुम पर तूर पहाड़ को बुलंद किया। यानी कि फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो है तुमने पूरे की पूरी अहकाम के ऊपर अमल करना है। ये तुमने जो अपनी तरफ से बात की थी, ऐसी बात अब नहीं करनी है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वरफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, कि तूर पहाड़ तुम पर बुलंद किया। तो यानी कि कहा था कि अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तूर पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। तो लिहाजा इन्होंने फिर जो है वो उस डर से कि कहीं तूर पहाड़ हम पे गिर ना जाए और हम मर ना जाएँ, इन्होंने इस वक़्त इकरार किया कि ठीक है हम पूरे के पूरे तौरात के ऊपर अमल करेंगे। वरफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और तूर पहाड़ को बुलंद किया। इसके बारे में जो है वो 2 वज़ाहतें लिखी हैं उलमा ने। एक तो ये बात लिखी है कि बराह रास्त जो पूरा पहाड़ था वो उनके ऊपर बुलंद किया हुआ था, यानी कि वो पहाड़ को ही उठाकर उनके ऊपर रखा हुआ था। और दूसरी जो है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि मुराद इससे पहाड़ के ऊपर होने से मुराद ये था कि वो पहाड़ के पास थे तो पहाड़ जो है वो हिल रहा था। कुरान पाक में दूसरी आयत में भी है, वइज़नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, कि वो पहाड़ ज़लज़ले की वजह से ऐसा ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा था कि वो समझने लगे थे कि अगर ये ऐसे ही हिलता रहा तो करीब है कि ये पहाड़ लैंडस्लाइडिंग जैसे होती है, इस तरह जो है ना वो हम पर आकर गिर जाएगा। तो वरफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर के बारे में ये 2 वज़ाहतें थी कि एक तो ये कि या तो बराह रास्त उस पहाड़ को उनके ऊपर उठाया गया था, या दूसरा ये कि वो पहाड़ ज़लज़ले की वजह से इस तौर पर हिल रहा था और ये नीचे थे कि ये गुमान करने लगे कि पहाड़ जो है ना ये रेज़ा-रेज़ा होकर बिखर के इनके ऊपर आके गिर जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अल्लाह ताला ने इनसे वादा लिया कि इन आप अहकामात को मज़बूती से पकड़ो, वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और इसमें जो चीज़ें तुम्हें बतलाई गई इनको याद रखो ताकि तुम मुत्तकी बनो। अच्छा जी, मेरे ख्याल से सबक आज इतना ही कर देते हैं, बाकी कल मौलाना सुलेमान साहब आएँगे, फिर वो आपको पढ़ा देंगे। अब अगर किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। आप शुरू से जितनी आयतें पढ़ाएं एक दफा बस इसकी लफ्ज़ी तर्जुमा बता देंगे ताकि सब मिल जाए जो आपका कॉन्टेक्स्ट है। चलिए मैं करता हूँ। जी शुक्रिया। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, फदउ, बस आप दुआ कीजिए या पुकारिए, लना, हमारे लिए, रब्बका, अपने रब को, युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए, युखरिज लना, निकाले हमारे लिए, मिम्मा, उन चीज़ों में से, तुम बितुल अर्ज़, जिन्हें ज़मीन उगाती हैं, मिम बक़लिहा, उसकी तरकारियों में से, व क़िस्साइहा, उसकी ककड़ियों में से, व फूमिहा, उसके लहसुन में से, व अदसिहा, उसके दालों में से, व बसलिहा, उसके प्याज में से। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी, उस चीज़ को, हुआ अदना, जो कि कमतर है, बिल्लज़ी, उस चीज़ के साथ, हुआ खैरुन, जो बेहतर है। इहबितू, उतरो, मिस्रन, इसी शहर में, फ़इन्ना लकुम,
پس بے شک تمہارے لیے ہے ماں وہ چیزیں سألتم جو تم نے مانگی، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنۃ اور بیچارگی، وباؤ اور وہ واپس لوٹے بغضب من اللہ غصے کے ساتھ اللہ کی طرف سے، لوٹے وہ غصے کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ اس لیے بأنہم کیونکہ انہوں نے کانوا یکفرون بآیات اللہ انکار کیا، کانوا یکفرون اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ ذالک یہ اس لیے بأنہم کیونکہ وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے النبیین انبیاء کو بغیر الحق ناحق، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ اس لیے بما عصوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، بما اس لیے عصوا کیونکہ نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو ایمان لایا، من جو آمن ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور کام کیے صالحا اچھے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تمہارا وعدہ، مراد تم سے وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا طور پہاڑ کو، اور کیا کہا خذوا ما آتیناکم، خذوا لے لو یا پکڑ لو ما ان چیزوں کو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، اس کا تعلق خضوع کے ساتھ ہے یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واذکروا اور یاد رکھو ما ان چیزوں کو فیہ جو اس میں ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن سکو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی مزید اب کوئی بات؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ وإیاک۔ مزید اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو سبق کے حوالے سے؟ کچھ نہیں مزید؟ چلیں ٹھیک ہے، سبق کا اختتام کرتے ہیں، باقی پھر ہم کل پڑھیں گے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔